Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is Introduction to Key. In last lecture, we see the types of shaft, differentiate between shaft axle and spindle, different material used for shaft, advantages of hollow shaft over solid shaft, design of shaft on the basis of rigidity, maximum shear stress of solid shaft and hollow shaft. The learning outcome of today's lecture are students are able to know in brief different types of keys, solve the relation on why key equally strong in shear and crushing, or the crushing stress is twice the shear stress, state the effect of keyway on strength of shaft. The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8 to PO10. Similarly, the various program specific outcomes achieved in today's lecture are PSO1 to PSO3. Now, here we see what is meant by key. तो key क्या होता है? Key is a mechanical member inserted in the keyway provided in shaft and hub, which prevent the relative motion between the shaft and hub. Okay, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको this one is a shaft, this one is a hub and this one is a key. तो अभी ये हब कहाँ पे फिट होगा? ऑन द शाफ्ट. जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट मैंने इसके अंदर में फिट किया, और अभी अगर मैं शाफ्ट रोटेट करूंगा तो आपका हब रोटेट होगा क्या? नहीं. लेकिन जब मैं यहाँ पे की को इंसर्ट करूंगा तो की वे में, देन व्हाट हैपेंस, दिस एक्टिंग एज अ वन असेंबली एंड इट विल गेट रोटेटिंग. ओके, मतलब इट विल प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड हब. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस वन इज अ शाफ्ट, दिस इज अ हब, और ये की यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, तो पूरा असेंबली क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे की नहीं लगाता तो क्या होता था? ये रोटेट होता था क्या? नहीं. That's why it will prevent the relative motion. So that is the simple concept of the key. Now keys are classified on the basis of shape and application of keys. तो पहला जो टाइप है वो कौन सा है? दैट इज कॉल्ड एज अ संक की. ओके, तो संक की में डिफरेंट टाइप है. फर्स्ट वन इज अ रेक्टेंगुलर संक की. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर संक की. तो इसमें विड्थ कितना रहेगा की का? दैट इज विड्थ इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय 4, और थिकनेस जो रहेगा की का वो कितना रहेगा? थिकनेस ये वाला, दैट इज अ 2W डिवाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय 6. देन स्क्वायर संक की, मतलब यही शेप क्या रहेगा आपका? स्क्वायर रहेगा. तो इसका विड्थ और थिकनेस कितना रहेगा? डी डिवाइड बाय 4. देन नेक्स्ट वन इज अ जीब हेडेड की. तो दिस इज द जीब हेडेड की. ओके, then feather key and woodruff key, that is the type of a sunk key. Then next type is a saddle key. तो saddle key में पहला रहता है flat saddle key and hollow saddle key. ओके, तो flat saddle key, this one is a flat saddle key. ये width है, ये इसका height है, ये इसका length है. Then next one is a round key. तो round क्या रहेगा? ये shape रहेगा, पूरे round में रहेंगे key. ओके, which will prevent the relative motion between the shaft and hub. Now here we see the application of sunk key. Sunk key is used for heavy duty application. रेक्टेंगुलर sunk key कहाँ पे यूज होता है? फॉर प्रिवेंटिंग द रोटेशन ऑफ गियर्स एंड पुलीज ऑन द शाफ्ट, जैसे गियर बॉक्स में. जीब हेडेड की कहाँ पे यूज होता है? यूज वेयर की टू बी रिमूव फ्रिक्वेंटली, मतलब जहाँ पे आपको की बहुत बार निकालना है, इस तरीके के एप्लीकेशन में आप जीब हेडेड की यूज करते हो. देन फीदर की इन द मशीन टूल, saddle key for light duty or low power transmission, round key used for the low power drive. Splines are used where providing axial movement between the shaft and the mounted member. Then here we see the design of a sunk key. तो design मतलब क्या होगा? We have to find out the thickness and the width of the key, that is called as a design of key. तो यहाँ पे आपको एक मेंबर दिख रहा है, दिस इज अ शाफ्ट. यहाँ पे ये की में क्या फिक्स किया? मैंने की को फिक्स किया है. तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर रोटेटिंग दिस शाफ्ट, ओके, एंड वी आर माउंटिंग द हब ऑन द सरफेस ऑफ दिस शाफ्ट,
और ये की क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन जब प्रिवेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा की के ऊपर में। तो की क्या हो सकती है, यहाँ से शेयर हो सकती है, दिख रहा है ये वाला पोर्शन, यहाँ से शेयर हो सकती है। तो शेयर कौन से एरिया से होंगे, ये वाले एरिया से होंगे, मिडल वाले। ओके, दैट इज इक्वल टू W इंटू एल इज अ शेयर एरिया। बट की वे का की के साथ कांटेक्ट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। व्हेन इट विल गेट ट्रांसफरिंग द पावर, यहाँ पे कांटेक्ट रहेगा, कितने एरिया में रहेगा, T डिवाइड बाय 2 इंटू एल। ओके, तो ये आगे में देखते हैं। नाउ हियर वी आर सीइंग द शाफ्ट। तो यहाँ पे क्या है आपका, T जो है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, मतलब जब ये शाफ्ट रोटेट होगा तो ये टॉर्क कितना ट्रांसफर करेगा की को, that is a capital T. F is a tangential force acting at the circumference of the shaft. F क्या है, जब टॉर्क ट्रांसफर करेगा की किसको, हब को, तो F is a tangential force acting on the key. Then D is the diameter of the shaft. ये जो शाफ्ट का डायमीटर है ये कितना रहेगा, D रहेगा. L is the length of key. L क्या है आपका, लेंथ ऑफ की. W क्या है, विड्थ ऑफ की, मतलब ये W क्या हो गया आपका, विड्थ ऑफ की. T क्या है, थिकनेस ऑफ की, मतलब ये इसका थिकनेस की का ये कितना रहेगा, T रहेगा. टाउ एंड सिग्मा C इज द शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ की. टाउ और सिग्मा C क्या रहेगा आपका, शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेस. नाउ see here considering the shear failure of the key. तो shear failure कैसे होता है, when this tangential force acting on the key, why ये tangential force क्यों एक्ट हो रहा है, because when shaft will get rotating, तो shaft क्या करेगा, टॉर्क ट्रांसफर करेगा with the help of this key to the hub. तो यहाँ पे की पे क्या हो रहा है, tangential force एक्ट हो रहा है. ओके ओके, ये टेंजेंशियल फोर्स के वजह से यहाँ पे ये की क्या होगा, शेयर होगा. तो शेयर कितने एरिया में होगा, दैट इज द W इंटू एल, इसी एरिया में शेयर होगा. दैट्स वाई द एफ इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया रेजिस्टिंग शेयरिंग इंटू शेयर स्ट्रेस. तो एरिया रेजिस्टिंग शेयरिंग कितना है, एल इंटू डब्ल्यू इंटू शेयर स्ट्रेस, दैट इज द टाउ. देयरफॉर टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट जो टॉर्क ट्रांसफर कर रहा है टू द हब विद द हेल्प ऑफ की, ये कितना रहेगा आपका, एफ इंटू डी डिवाइड बाई 2. ओके, तो एफ की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ. That's why I am writing here L into W into tau into D divided by 2. So that is equation number 1. So this is the relation of torque when we are considering the key or failure under shear. Second जो thing है यहाँ पे, that is when the key are fail in the shear stress. तो यहाँ पे क्या है, शाफ्ट के अंदर में की वे है और हब के अंदर में भी की वे है. तो जब शाफ्ट टॉर्क ट्रांसफर करेगा फ्रॉम this point to the hub, then what happens, there is a contact of half portion of the key with the key way of the shaft. मतलब कौन से एरिया में कांटेक्ट आएगा की का, की वे ऑफ शाफ्ट के साथ, इस एरिया में ही कांटेक्ट आएगा. ओके, तो ये एरिया अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, T डिवाइड बाय 2 इंटू एल. ओके, दैट्स वाई राइटिंग हियर F इज इक्वल टू एरिया रेजिस्टिंग क्रशिंग इंटू क्रशिंग स्ट्रेस, दैट्स वाई एल इंटू T डिवाइड बाय 2 इंटू सिग्मा C. Now next, therefore the torque transmitted by the shaft, that is T is equal to F into D divided by 2. तो अंडर ये F की वैल्यू कितनी है क्रशिंग में, that is L into T divided by 2 into sigma C into D divided by 2. So this is the equation of torque under the crushing stress or crushing failure of the key. Now यहाँ तक क्या हो गया आपका, that is the design of the key where we are considering the key under the crushing and the shear. But प्रॉब्लम में क्या आता है आपको, प्रूव दैट की आर इन की द क्रशिंग स्ट्रेस इज ट्वाइस द शियर स्ट्रेस. तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, अज्यूम करना पड़ेगा द की इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन द शियरिंग एंड क्रशिंग. तो दैट्स वाई वी आर इक्वेटिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो आपको क्या मिला यहाँ पे, एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एल इंटू टी डिवाइड बाई 2 इंटू सिग्मा सी इंटू डी डिवाइड बाई 2. तो एज अ की इज अ स्क्वायर, क्योंकि आपको प्रॉब्लम में दिया है की स्क्वायर है, तो W इंटू टी इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका, D डिवाइड बाई 4. दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर L इंटू डी डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ इंटू D डिवाइड बाई 2. सिमिलरली L इंटू टी के जगह पे कितनी वैल्यू रखेंगे आप, D डिवाइड बाई 4. दैट्स वाई इट इज अ D डिवाइड बाई 8 इंटू सिग्मा C इंटू D डिवाइड बाई 2.
तो ऑल टर्म्स आर कैंसल हियर और आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, सिग्मा सी दैट इज अ क्रशिंग स्ट्रेस इज अ ट्वाइस द शियर स्ट्रेस। तो हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव किया आपने, क्रशिंग स्ट्रेस जो की में डेवलप हो रहा है स्क्वायर की में, दैट इज द ट्वाइस द शियर स्ट्रेस डेवलप इन द की। Okay, so that is all about the design and the relation between the crushing stress and the shear stress for the key. Now effect of keyway on the strength of shaft. तो ये क्या दिख रहा है आपको, शाफ्ट दिख रहा है और यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक स्लॉट प्रोवाइड किया है फॉर इंसर्टिंग द की। तो ये कीवे प्रोवाइड क्यों किया है, फॉर इंसर्टिंग द की, मतलब यहाँ से क्या किया है मैंने, मटेरियल रिमूव किया। तो ये मटेरियल रिमूव करने के कारण ये शाफ्ट क्या होगा, इस सेक्शन में वीक होगा। ओके, सो दैट वाइल डिजाइनिंग द शाफ्ट आप क्या करेंगे, आपको अगर शाफ्ट डिजाइन करना है तो आपको एक रिडक्शन फैक्टर आपको डिजाइन करना पड़ेगा और आपको शाफ्ट का डायमीटर क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा टू इलिमिनेट दिस इफेक्ट ऑफ द कीवे। बिकॉज कीवे यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये जो कॉर्नर पोर्शन है यहाँ पे क्या हो सकता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। तो दिस stress concentration effect will be eliminated by the reduction factor Rf is equal to 1 minus 0.2 B upon D minus 1.1 T upon D, where ये जो B क्या है आपका, width ऑफ की, T क्या है आपका, thickness ऑफ की, D क्या है, diameter of the key. The usual value of strength of key shaft is 75% of the solid shaft. The above result gives higher value than 75%. Therefore, it is necessary after finding the dimension of key to check this factor, that is the K. तो k की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, नॉट बी लेस देन द 0.75। अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायमीटर विल बी गेट इंक्रीजिंग और विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द की विल बी डिक्रीजिंग हियर, देन एंड देन ओनली ये वैल्यू क्या रह सकती है, 0.75 से लेस हो सकती है। ओके, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ की वे ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। The unit outcome achieved in today's lecture are: design the power transmission element like shaft, keys and coupling. Summary of today's lecture are: explain in brief different types of key, then show that for the key equally strong in shear and crushing, the crushing stress is twice the shear stress. State the effect of keyway on the strength of shaft. The various program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, program specific outcome achieved in today's lecture are PSO1 to PSO3. The various important questions asked in MSBT exam are: how the keys are classified, give detailed classification of key with NITS gauge, also state their application. What is key? State its function. Prove that for a square key, permissible crushing stress is always twice the permissible shearing stress. Explain with the help of NITS gauge the design procedure of square sunk key. State the effect of keyway on strength of shaft. In next lecture, we see introduction to coupling. Thanks. For any query, contact to me at 93598 77398.